Hello student, today we are going to discuss about the topic colligative properties of non-electrolyte solution, which comes under the chapter number 2, solution. Now student, what do you mean by colligative properties of non-electrolyte solution? So the definition is the physical properties of the solution that depends upon the number of solute particles but not on their nature is called as colligative properties. So here are 4 colligative properties. We will discuss one by one. The first colligative property is vapor pressure lowering, or we can say lowering of vapor pressure. Second colligative property is boiling point elevation. Third is freezing point depression, and depression means lowering. Okay, and fourth colligative property is osmotic pressure. Now here the new basic concept, that is non-electrolyte solution. What do you mean by non-electrolyte solution? The solution which do not conduct the electricity is called as non-electrolyte solution. And while discussing the colligative property, we are dealing with the dilute solution. Now student, what do you mean by dilute solution? Suppose we take 2 beakers, and in beaker number 1, this is beaker A and this is beaker B. Okay, in both the beaker we take 100 ml of water, and both the beaker contain 100 ml water. If we add 5 gram of sugar in it, and in the second beaker if we add 50 gram of sugar, which beaker contain the dilute solution? Yes, beaker number 1 contain the dilute solution, because here the concentration of the amount of solute as compared to the solvent is very less. So it is a dilute solution. So students, while dealing with the colligative property, we deals with the dilute solution. Because why we deal with the dilute solution? Because these dilute solutions behave like the ideal solution, and we already learned that ideal solution obeys the Raoult's law. In ideal solution, there is no change in enthalpy, no change in volume. Therefore, these dilute solution behave nearly about as ideal solution. Okay. So, the concentration of these dilute solution should be 0.2 molar or less than in it. Means इसका concentration जो है, इतना कम concentration जब रहेगा तभी हम colligative property की study कर सकते हैं. Okay. So, one by one we will discuss this colligative property. So first colligative property is vapor pressure lowering, or we can say that lowering of vapor pressure. अब vapor pressure एक colligative property नहीं है, but lowering in vapor pressure is a colligative property. So question कैसे आएगा एग्जाम में? Explain how vapor pressure lowering is colligative property. So we will discuss here vapor pressure lowering. Suppose in a beaker we take solvent which is volatile in nature, and if we add non-volatile solute which is non-ionizable, means it cannot conduct the electricity. If we add this non-ionizable solute into this volatile solvent, what will happen? There is lowering in vapor pressure. How? Let's take the example. Suppose this is a beaker which contain the pure solvent. Okay, this is a beaker number 1 which contain the pure solvent. This is beaker number 2 which contains solute plus solvent. Okay, this is a surface molecules. Okay, here are some solute molecules, some solvent molecules. So in this beaker, in these 2 beaker we take, in first beaker we take pure solvent, in the second beaker we take solute plus solvent. Here we are discussing how the vapor pressure of solvent is decreases by adding the non-volatile solute. तो यहाँ पर क्या होता है? अब देखो यहाँ पे सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है और सॉल्वेंट के ही वेपर रहेंगे, बराबर है. बट यहाँ पे ये जो है ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, इसकी वेपर बनेंगी, बट ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इसकी वेपर फॉर्म
नहीं होती है, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे वेपर बनाने के लिए, समझ में आया। इसीलिए जो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से लो हो रहा है, समझ में आया आपको। सो वी कैन से दैट बाय एडिंग द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू द solution, the vapor pressure of pure solvent can be lowered down. Okay. Now, if P10 is the vapor pressure of pure solvent and P1 is the vapor pressure of solvent above the solution, then P1 is less than P10. अब P1 ये P10 से लेस क्यों है, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया। ये जो P1 है ये क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन के ऊपर जो सॉल्वेंट की वजह से प्रेशर आया है वो प्रेशर है, ठीक है। और ये जो P10 है ये प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे दोनों में भी प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। और ये सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की वजह से ही प्रेशर है, बट यहाँ पे प्रेशर कम दिख रहा है, बराबर है, समझ में आया आपको। तो यहाँ पे P1 इज लेस देन P10, यहाँ से हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, द वेपर प्रेशर लोअरिंग इज डेल्टा P इज इक्वल टू P10 माइनस P1। अब डेल्टा P क्या है, डेल्टा P है वेपर प्रेशर लोअरिंग, मतलब कितना लो हो गया है प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितना चेंज आया है, दैट इज डेल्टा P लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P10 माइनस P1, ठीक है। अब P10 क्यों लिखा है हमने पहले, क्योंकि ये बड़ा है, समझ में आया। सो डेल्टा P इज इक्वल टू P10 माइनस P1। ओके, नाउ स्टूडेंट, why the vapor pressure of solution containing non-volatile solute is lower than that of the pure solvent। इसका मीनिंग क्या है कि जो सॉल्यूशन में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है उसकी वजह से जो प्रेशर फॉर्म हुआ है उसका प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम क्यों होता है, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन है, वेपर प्रेशर डिपेंड करती है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द ईज ऑफ द मॉलिक्यूल टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो सम ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर रिप्लेस्ड बाय द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द वेपर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो रहते हैं वेपर फॉर्म करने में कुछ भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, इसीलिए सरफेस पे जो एरिया अवेलेबल होता है सॉल्वेंट के लिए कुछ एरिया सोल्यूट ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इसीलिए वहाँ पे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। इसलिए जो P10 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से ज़्यादा रहेगा। ओके, दस देयर इज अ लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज रॉड्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रॉड्स लॉ क्या होता है, अभी आपको इसको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए अप्लाई करना है। So here Rod's law expresses the relationship between the vapor pressure of solution and vapor pressure of solvent। Rod's law किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, तो Rod's law expresses the relationship between the vapor pressure of solution versus the vapor pressure, Rod's law expresses the relationship between vapor pressure of solution and vapor pressure of solvent। So according to the Rod's law, P1 is equal to P10 into X1। इसका मीनिंग क्या होता है, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ये जो है P10 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द Rod's law P1 is equal to P10 into X1। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं P1 वर्सेस X1, यहाँ पे P10 ये जो है ये टर्म कांस्टेंट है, इसलिए हम ग्राफ किसके वर्सेस बनाएंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम X1 से एक्सप्रेस करेंगे और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हम P1 से एक्सप्रेस करेंगे। अब यहाँ पे 1 यानी आपको समझना है 1 हम सॉल्वेंट के लिए लेते हैं और 2 हम सॉल्यूट के लिए लेते हैं। ओके, सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं P1 वर्सेस X1 तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलती है आपको। अब देखो ये जो पॉइंट है
इसको अगर आपने ज्वाइन किया तो यहाँ पे देखो जैसे ही मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है वेपर प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है। समझ में आया आपको? मोल फ्रैक्शन जितना बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में आया? तो वेपर प्रेशर एक किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आपको? सो P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1 फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन कंटेनिंग वन सोल्यूट। अभी आपको पता है बाइनरी सोल्यूशन क्या होते हैं? बाइनरी सोल्यूशन मीन्स दो सोल्यूशन विच कंटेन टू कंपोनेंट। ओके, फॉर दिस x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। आपको पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, देयरफॉर वी कैन राइट x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। ओके, इट देयरफॉर फॉलोज दैट P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। ये जो है रॉल्स लॉ है, ठीक है। यहाँ पर हमने x1 की वैल्यू यहाँ से पुट की है। ओके, सो द इक्वेशन बिकम्स P1 इज इक्वल टू P10 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस x2। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा? इज इक्वल टू P10 माइनस P10 इंटू x2। ओके, और वी कैन राइट इसको, अगर आप इधर शिफ्ट करते तो आपको क्या मिलेगा? P10 माइनस P1, ये P1। ओके, इसको हम इस साइड लेके आए हैं तो P10 माइनस P1 इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा P10 x2। समझ में आपको? अभी आपको पता है हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला है, दैट इज डेल्टा P, एंड डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा P इज इक्वल टू P10 माइनस P1। ओके, तो हम यहाँ पे P10 माइनस P1 की जगह पे क्या लिखेंगे? डेल्टा P लिखेंगे। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P10 इंटू x2। समझ में आया? P10 इंटू x2, हेस डेल्टा P इज इक्वल टू P10 इंटू x2। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो हम सोल्यूट के लिए लेते हैं। ओके, तो ये तो टर्म कांस्टेंट है, इसलिए ये जो डेल्टा P है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x2 के ऊपर। इसलिए हमने लिखा है दिस इक्वेशन शोज दैट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज डेल्टा P डिपेंड्स अपॉन द सोल्यूट पार्टिकल, हेंस डेल्टा P लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, so student, I hope that you understood today's topic, and in the next video we will learn about the relative lowering of vapor pressure. Thank you.